Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. Now in this we are going to revise the concepts of the chapter inverse trigonometric functions of your class 12th through MCQ discussion. Alright. Please pay attention because it's an important chapter. You know that you require the properties of inverse trigonometric functions, alright, and we require domain and range of inverse trigonometric functions, alright. You know the range means principal value branch. So we require all that to do the questions, alright. But before we begin, don't forget to subscribe to the channel beta so that you get intimation regarding the upcoming video lectures so that your complete chapter is revised thoroughly. Alright, so let's begin. So you can see the first question on your screen beta. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें दिया है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6. अब देखो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं पहले वो लिखते हैं. वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट कॉस इनवर्स ऑफ cos theta is equal to theta if theta belongs to principal value branch which is closed interval 0 to pi. So that means now 7 pi by 6 you know is not in this interval 0 to pi because 7 pi by 6 is greater than pi. So let us see how we are going to do this question. So we have to evaluate cos inverse of cos of 7 pi by 6. अब ये वाला जो एंगल है बेटा आपको इसको लेकर आना है इस इंटरवल में 0 से लेकर पाई में. तो लेट अस सी वो कैसे लेकर आएंगे. ओनली देन cos इनवर्स एंड cos विल गेट कैंसल्ड. नाउ वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं देखो, तो दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ cos. अब देखो cos थीटा आपको पता है होता है सेम एज cos ऑफ 2 pi minus theta, isn't it? ट्रिग्नोमेट्री में अलाइड एंगल्स में करते हैं. यू कैन सी दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो cos 2 pi minus theta is cos theta. तो cos 7 pi by 6 can be written as cos 2 pi minus 7 pi by 6. Let's see what do we get. This will be equal to cos inverse of cos 5 pi by 6. अब देखो ये जो हमारा एंगल 5 पाई बाय 6 है बेटा, ऑलराइट, विच एंगल 5 पाई बाय 6. 5 पाई बाय 6 जो है इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई. ये बिलोंग करता है बेटा इसको, ठीक है. तो अगर देखो ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब इट इज in the principal value branch. तो this property can be applied that cos inverse of cos theta will be theta. तो cos inverse और cos हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं. तो this will be equal to 5 pi by 6. So this will be the solution. देखते हैं कौन सी ऑप्शन है ये. Alright. तो you can see now the complete question बेटा. तो आंसर 7 pi by 6 नहीं होगा, 5 pi by 6 होगा. That means we have B option to be correct. Is it okay? तो B option correct आएगी. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at the next question. Again, we have to calculate cos inverse of cos 5 pi by 3 plus sin inverse of sin 5 pi by 3. अब just like previous question, we know that cos inverse of cos theta बेटा theta के इक्वल होता है अगर theta belongs to principal value branch that is closed interval 0 to pi. फिर sin inverse में देखो क्या प्रॉपर्टी होती है. sin inverse of sin theta will be equal to theta अगर theta sin inverse की रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है which is closed interval minus pi by 2 से लेकर pi by 2. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे इसको इवेल्युएट करने के लिए. Let us see what is given to us. We have to evaluate cos inverse of cos 5 pi by 3. Is it all right? ये निकालना है बेटा. और फिर हमें निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना 5 पाई बाय 3. इज इट ऑल राइट. अब देखो 5 पाई बाय 3 आपका जो एंगल है वो आपका पाई से बड़ा है तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई में नहीं बिलोंग कर रहा.
तो यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, वी कैन राइट इट एज cos 2 pi minus theta. We know this result that cos of 2 pi minus theta is same as cos theta. तो cos theta को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो let's write now. Let's see what are we getting. This is equal to cos inverse of cos 2 pi minus 5 pi by 3 बेटा, ये लिख सकते हैं. अब यहां पे देखो हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 3. इज इट ओके? इसको देखो 5 पाई बाय 3 एंगल आप कैसे लिख सकते हो? दिस एंगल कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस पाई बाय 3. इस एंगल को ऐसे लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज एंगल 5 पाई बाय 3. अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. In the fourth quadrant, you know that sign is negative. Is it okay? So let us see what are we getting. This is equal to cos inverse of cos. ये angle evaluate कर लो, ये आ जाएगा cos pi by 3. फिर हमारे पास है plus sin inverse of. Now we are going to apply here. यहाँ पे इसमें apply करेंगे. We are going to solve बेटा this part. साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये टर्म बन रही है माइनस साइन पाई बाय 3. इज इट ओके? अब देखो इनवर्स में हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बेटा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो अब हम ये रिजल्ट यूज करेंगे टू ब्रिंग दिस माइनस साइड आउटसाइड. All right, so that means in the next step we can write it as this will become equal to, let us write beta, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं इसको. So this will be equal to now cos inverse of cos pi by 3. all right, और ये माइनस बाहर आ गया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो माइनस बाहर निकालो, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3. अब हम चेक करते हैं क्या ये एंगल्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहे हैं. कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कब था? जब आपका थीटा बिलोंग करता है 0 टू पाई. तो इस वाले केस में बेटा ये एंगल जो है बिलोंग कर रहा है आपका 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में. तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट पाई बाय 3. इस केस में ये वाला जो एंगल है बेटा ये बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जो कि साइन इनवर्स एक्स की होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो अगेन साइन इनवर्स एंड साइन विल कैंसल्ड, वी विल गेट पाई बाय 3. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग नाउ दिस टू बी इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3. ठीक है, क्योंकि पाई बाय 3 0 से पाई में भी है. पाई बाय 3 इज ऑल्सो इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा, ये देखो ये हमने प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पे बेटा, ये हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाली कि cos inverse of cos theta is theta if theta belongs to 0 to pi and sin inverse of theta is theta if theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यू नो दैट नाउ द आंसर विल कम आउट टू बी 0. ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे. तो 0 जो है हमारी ए ऑप्शन है. दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बेटा. Is it okay? So this was question number 2. Again we are simply using these two properties. All right. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at the next question now. Next question में भी आपको निकालना है sin inverse of sin 10. Again, what are we going to use? That sin inverse of sin theta will be equal to theta if theta belongs to closed interval 0 to, sorry, if theta belongs to क्या बेटा? इसकी principal value branch which is closed interval minus pi by 2 से लेकर कहाँ तक? pi by 2. Isn't it? तो हम चेक करते हैं क्या 10 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. अब देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल क्या हुआ?
पाई यू नो इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो माइनस पाई बाय 2 अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.57 आएगा बेटा. इज इट ओके? तो माइनस 1.57 और ये आएगा प्लस 1.57. तो अगर आपका इस इंटरवल में थीटा है तो ही आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. अब देखो 10 तो बहुत आगे हो जाएगा ना, 10 इज आउटसाइड दिस इंटरवल. तो वी हैव टू डू मैनिपुलेशन टू गेट दिस एंगल इन द रिक्वायर्ड इंटरवल. उसके लिए देखो क्या करते हैं, जैसे आप पाई का नियरेस्ट मल्टीपल देखो जो कि 10, मतलब कि पाई का मल्टीपल देखो जो 10 के नियरेस्ट है. इज इट ऑल राइट? वी नो दैट पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14. तो इसका मतलब बेटा 10, ये जो है 10 के नजदीक अगर हमने लेना है, ठीक है, तो आप कौन सा मल्टीपल लोगे? 2 पाई लोगे तो 6.28 हो जाएगा, विच इज फार अवे फ्रॉम 10. इफ यू टेक 3 पाई विल बी इक्वल टू 9.42 विच इज क्लोज टू 10. तो हम क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट अस डिनोट दिस वैल्यू एज y, जो हमें निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10. तो आपने नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है. तो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन में 10 माइनस 3 पाई करेंगे और प्लस करेंगे हम 3 पाई बेटा. अब आप नोटिस करो ये वाला जो एंगल है इसको हम फिलहाल मान लेते हैं थीटा. ठीक है, मान लो थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 3 पाई. तो एक तरह से हमारे पास यहां पे आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई प्लस थीटा बेटा. ठीक है ना, ये देखो ये 3 पाई है और प्लस थीटा. नाउ यू नो दैट 3 पाई प्लस थीटा विल बी थर्ड क्वाड्रेंट. Third quadrant sign will be negative. So this will be equal to sine inverse of minus sine theta. Is it okay? Now in the last question also we had used this property that sine inverse of minus x is equal to minus of sine inverse x. Alright? तो ये होता है बेटा हमारे पास. तो sine inverse of minus x minus sine inverse x है, तो this minus can be taken outside. That means this is equal to minus of sine inverse of sine theta. अब ये जो थीटा की वैल्यू है हम पुट कर देते हैं. थीटा was 10 minus 3 pi. So let me put over here. So that means this is equal to minus sine inverse sine of 10 minus 3 pi. Is it all right? This is y which we have to obtain. अब आप ये वैल्यू देखो 10 माइनस 3 पाई क्या आ रही है. ऑलराइट, ये देखो 10 माइनस 3 पाई ये हमें निकालना है. दिस विल बी 10 माइनस 9.42, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 0.58. और देखो 0.58 जो है ये बिलोंग करता है आपका इंटरवल को, किसको? क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जो कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी. तो हमने यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी में क्या बोला है, ऑब्जर्व करो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है 10 माइनस 3 पाई बेटा ये इस इंटरवल में आ गया है. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन हम कैंसिल कर सकते हैं. दैट मीन्स वी आर गेटिंग y टू बी इक्वल टू ये वाला माइनस देखो एज इट इज लिखा है और ये इतना पार्ट हमारा सॉल्व होके आ गया 10 माइनस 3 पाई. ऑलराइट, ये सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 3 पाई माइनस 10. सो दैट इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन बेटा. तो y की वैल्यू है 3 पाई माइनस 10. राइट, तो इसको हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं. वी विल डिस्कस द ग्राफ्स. फॉर द टाइम बीइंग इफ यू वांट टू डू इट विदाउट ग्राफ तो बस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई क्या करना है? सब्ट्रैक्ट और ऐड. ऑलराइट, तो लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा. तो यहाँ पे देखो हमारे पास आंसर जो आ रहा था दैट वाज 3 पाई माइनस 10. तो यू कैन सी 3 पाई माइनस 10 हमारी कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है बेटा. राइट, तो यहां पे हम लिख देते हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे.
अब हमें कैलकुलेट करना है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। पता है जिनमें ये चेन ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे इनवर्स फंक्शन है, फिर उसके बाद आगे साइन है, उसके बाद फिर इनवर्स होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो ऑल्टरनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन होती है। तो वो वाले क्वेश्चंस में इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एनी डायरेक्ट रिजल्ट वी सिंपली यूज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, लेट्स सी हाउ। तो देखो यहाँ पे जैसे वी हैव टू कैलकुलेट साइन ऑफ, मान लो इसको y मान लेते हैं, साइन ऑफ कॉट इनवर्स x की वैल्यू आपको निकालनी है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एज्यूम दिस कॉट इनवर्स x टू बी इक्वल टू थीटा। तो जो सबसे अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको हम थीटा एज्यूम करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो आई एम एज्यूमिंग लेट कॉट इनवर्स x बी इक्वल टू थीटा। इसका मतलब देखो x कितना आ गया, कॉट ऑफ थीटा। अब देखो कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x का मतलब x अपॉन 1, तो बेस इज x एंड परपेंडिकुलर विल बी 1। तो यहां पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू hypotenuse का स्क्वायर। तो दैट मीन्स hypotenuse का स्क्वायर विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो hypotenuse विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगी, तो हमारे पास hypotenuse ये आ गई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर कॉट इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना है तो y is coming out to be sin theta, तो I need to calculate sin theta। अब इस right triangle से let us calculate sin theta। You know that sin is perpendicular upon hypotenuse, that means y will be equal to 1 upon under root of 1 plus x square। You know that it can be written as 1 plus x square और उसकी पावर कितनी, माइनस हाफ। So that should be the value which we are asked। किसकी वैल्यू पूछी थी, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इट्स कमिंग आउट टू बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ। ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। इज इट ओके, सो डी ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। इज इट ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, tan ऑफ सीकेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी नीड टू कैलकुलेट। अगेन यू विल ऑब्जर्व दैट ये जो है आपके पास अंदर इनवर्स फंक्शन है बेटा, उसके बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगेन एक तरह से चेन ऑफ फंक्शंस है। तो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि इसमें भी हम इसको थीटा मान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो y विल बी इक्वल टू, लेट अस डिनोट दिस बाय y, सो वी हैव y इक्वल टू tan ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब एक काम करते हैं, वी कैन एज्यूम दिस टू बी इक्वल टू थीटा। ऑलराइट, इसको आप थीटा एज्यूम कर लो। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव यहाँ पे या तो इसको देखो थीटा एज्यूम करके कर सकते हैं। आई विल बी टेलिंग यू 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। पहला मेथड ये है कि जैसे यहाँ पे सीकेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा है, तो दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा देखो हमारे पास क्या होता है, सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इट इज हाइपोटेन्यूज और डिवाइडेड बाय बेस, जो कि कितनी है 1। इज इट ओके? तो अब यहां पे अगर आप राइट ट्राइंगल यूज करते हो तो हाउ कैन वी ऑब्टेन, लुक हियर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। So perpendicular square will be equal to 1 plus x square minus 1 square, which is equal to x square. That means perpendicular will be equal to x. तो perpendicular हमारा x आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, y is equal to this, so we can say y is equal to tan of theta.
इज इट ओके? तो हमारे पास ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब y जो tan थीटा था दैट इज x अपॉन 1। तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट टू बी x बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी जिसमें x दिया है। तो चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यू कैन सी दैट बी ऑप्शन में x दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी बी बेटा, राइट? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, एज आई सेड विल बी डूइंग टू मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड मेथड ध्यान दो कि क्या होगा, वी कैन टेक सूटेबल सब्सटीट्यूशंस। अब देखो सूटेबल सब्सटीट्यूशन क्या होती है, हम यहाँ पे एक बारी रिकॉल करते हैं। अगर आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें x को हम लेते हैं बेटा या तो a tan थीटा और वी टेक इट एज a cot थीटा, so that after putting trigonometric identity apply हो जाए, we know that 1 plus tan square theta is secant square theta and 1 plus cot square theta is cosecant square theta. So that is why we take these substitutions. Similarly, if you have under root of a square minus x square, दो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होती है। हम लेते हैं x को a sin थीटा या फिर आप ले सकते हो a cos थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड आउटसाइड द स्क्वायर रूट। सिमिलरली इफ यू हैव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ये होता है देन व्हाट इज द सूटेबल सब्स्टिट्यूशन? वी टेक एक्स टू बी इक्वल टू ए सीकेंट थीटा या फिर ले सकते हो ए कोसीकेंट थीटा। क्यों? Because secant square theta minus 1 is tan square theta and cosecant square theta minus 1, you know it is cot square theta. So these are the suitable substitutions. So now in this case we have under root of 1 plus x square, which you can see is comparable with under root of a square plus x square. In place of a we have 1. राइट तो सब्स्टिट्यूशन आप ये ले सकते हो x टू बी इक्वल टू a tan थीटा, जिसमें a कितना हो जाएगा 1। तो ऑल्टरनेटिव मेथड देखो इस क्वेश्चन को करने का, लुक हियर। सो लेट्स टेक अ लुक एट नाउ ऑल्टरनेटिव मेथड। अब देखो हमें निकालना क्या था, लेट मी डिनोटेड बाय y। तो इट वाज इक्वल टू tan ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ, वी हैड टू कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना। अब देखो इसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं ये वाली कि x कैन बी टेकन एज tan थीटा, ऑलराइट, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, a 1 हो गया। तो लेट अस टेक x टू बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब देखो हमारे पास y कितना आ गया। सो वी हैव y इक्वल टू tan ऑफ secant inverse of under root of 1 plus tan square theta. Is it okay? Now let's apply the trigonometric identity. You know that 1 plus tan square theta is secant square theta. So y is equal to tan of, alright, so tan of secant inverse of कितना आ गया? under root of secant square theta. Take secant square theta outside the square root. So we have y equal to tan of secant inverse of secant theta. Is it okay? So secant inverse of secant theta will be equal to theta. So we have y is equal to tan theta. और ये देखो tan theta कितना था? x था। तो वापस थीटा तो हमने खुद एज्यूम किया है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल है x बेटा, उसकी टर्म्स में आंसर देना है। तो tan theta is x, this implies y will be equal to x. So both the methods are correct. You can do the question by any one of the two methods. So second method was by taking suitable substitution. All right. तो again you can see जैसे था हमारा B option तो correct आई गई थी। तो these are the suitable substitutions which you have to memorize. All right. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Let us now look at question number 6. Now you can see again we have chain of functions. All right. पहले देखो अंदर cos inverse x है, फिर उसका tan लेना है, फिर उसका cot inverse और फिर उसका sin.
तो again this question has chain of functions alternately trigonometric and inverse trigonometric functions. Let's see how to deal with this one. So we have y equal to, देखो हमारे पास क्या है, sin of cot inverse of tan of, then we have cos inverse of x beta. अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपके पास चेन ऑफ फंक्शंस होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जो सबसे अंदर आपका इनवर्स फंक्शन है बेटा, उसको पुट करेंगे थीटा. तो लेट अस अज्यूम दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. तो यहां से आप ऑब्जर्व करो, cos थीटा विल बी इक्वल टू x. x का मतलब x अपॉन 1. तो वी कैन यूज राइट एंगल ट्राइंगल. लुक हियर, suppose this is theta, we know that cos is base upon hypotenuse, so we have base as x and hypotenuse as 1. Let's apply Pythagoras theorem to obtain the perpendicular. We know that perpendicular square will be equal to hypotenuse square minus base square, that is 1 minus x square. That means perpendicular is coming out to be under root of 1 minus x square. अब यहां पे देखो ये आ गया परपेंडिकुलर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम ये y लिखते हैं. अब हमारे पास देखो y क्या आ रहा है, यहां पे ये जो cos इनवर्स x है बेटा, दिस इज टू बी रिप्लेस्ड बाय थीटा. इसको थीटा से रिप्लेस करना है क्योंकि हमने देखो इसको थीटा लिया था. तो y इज नाउ साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ tan थीटा. Isn't it? We have this. अब हम इस राइट ट्राइंगल से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं tan थीटा. tan is perpendicular upon base. तो that means we have this equal to sin of cot inverse of tan theta. देखो इस ट्राइंगल में कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. ऑलराइट, सो दिस इज y. अब देखो आगे हमने कैसे करना है इसमें. अब आप क्या करोगे, इसको अब आप एक एंगल ले लो फाई. वी कैन टेक दिस एज एंगल फाई. ये जो है हमारा, लेट अस एज्यूम दैट कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स. लेट अस एज्यूम दिस टू बी इक्वल टू फाई. दैट मीन्स वी हैव कॉट फाई इक्वल टू under root of 1 minus x square and divided by x. So let's see what do we have. Again let us use a right angle triangle. तो right angle triangle बेटा हम यूज करते हैं. मान लो ये एंगल है phi. cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल. तो बेस हो गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है x. इज ओके. अब देखो हम यहां से निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो व्हाट डू वी हैव नाउ, दिस विल बी इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 1. तो देखो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 1 आ गई. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आई है 1. अब हम ये करते हैं, यहां पे रिप्लेस करते हैं कि इस टर्म को हमने अज्यूम क्या किया था, देखो phi. नाउ व्हाट इज y, लेट अस राइट. अब आप ऑब्जर्व करो, नाउ y इज इक्वल टू साइन ऑफ phi, इजंट इट. तो y हो गया हमारा साइन phi. अब इसको हम निकाल लेते हैं. ये देखो राइट ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स हैं. तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दैट मीन्स हेयर y विल बी इक्वल टू x अपॉन 1. इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट टू बी x बेटा. इज इट ओके? दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहां पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. तो ए ऑप्शन में x आ रहा है एज यू कैन सी. तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. अंडरस्टूड? तो चेन ऑफ फंक्शंस में अंदर वाले इनवर्स फंक्शन को पहले हमने थीटा लिया, फिर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, फिर कॉट इनवर्स जो भी आया उसको फाइ लिया. सो दिस इज द अप्रोच दैट वी टेक इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक इक्वेशन दी है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेट्स सी व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन ये है देखो कि साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखो यहां से x हम कैसे निकाल सकते हैं। आप जैसे यहां पे साइन इनवर्स ले लो दोनों तरफ, तो वी हैव साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, या ये भी कह सकते हो साइन को उधर ले गए तो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 1। यू नो दैट साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाय 2। आपको याद है ना कि साइन इनवर्स x अगर है तो ये बिलोंग करता है, देखो किसको, जस्ट अ मोमेंट, तो ये जो होता है हमारा साइन इनवर्स x बेटा, इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, है ना। इसकी वैल्यू ना तो -π/2 से बेटा छोटी होती है ना π/2 से बड़ी, तो साइन इनवर्स 1 जो है वो एक ही वैल्यू लेगा, कौन सा, π/2। दैट मीन्स वी आर गेटिंग हेयर, ये देखो हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x is equal to π/2. Now recall one property. Which property? We know that sin inverse of x plus cos inverse of x बेटा कितना होता है, π/2। अगर x बिलोंग करता है डोमेन को, डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो x अगर इस इंटरवल में है तो दिस सम इज π/2। तो देखो 1/5 है जैसे, तो वो -1 to 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो आप इस प्रॉपर्टी को इससे कंपेयर करो तो ये सम π/2 तब बनेगा जैसे यहाँ पे हमारे पास ये x और x सेम है। तो यहाँ पे 1/5 है, यहाँ x है, दिस implies this is possible because of this property only if x is equal to 1/5. तो that gives us the value of x to be equal to 1/5। तो हमने इसको इस प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लिया। आप ये भी कर सकते थे, cos इनवर्स को उस तरफ ले जाओ, π/2 minus cos इनवर्स will be equal to sin inverse x because of this property, and then compare x will be equal to 1/5. All right, so that means let's see which option is correct. So you can see the complete question now. So we can see that correct option will be D. तो यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। इज इट ओके? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिफोर वी मूव बेटा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑन द अपकमिंग लेक्चर्स। ऑलराइट, कोई भी अगर आपका लेक्चर मिस होता है बेटा तो फिर इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज MCQs कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इस बार ये आपको पता है, जो पहला पेपर है दैट इज बेस्ड ऑन MCQs टर्म 1 का। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वी हैव हेयर चेन ऑफ फंक्शंस विच वी हैव टू सॉल्व। तो नाउ यू नो द ट्रिक हाउ टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट व्हाट इज टू बी ऑब्टेन्ड। हमारे पास है देखो साइन ऑफ, cot inverse of, फिर cos of, then we have tan inverse x। ठीक है, हमारे पास ये है बेटा, या क्या। अब चेन ऑफ फंक्शंस है तो हमने कहा था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो सबसे अंदर इनवर्स फंक्शन है उसको हम थीटा पुट करेंगे। तो लेट अस डू दैट। लेट अस assume that tan inverse x is equal to थीटा। तो यहां से देखो x कितना आ गया हमारा, tan थीटा। ऑलराइट, तो राइट ट्रायंगल यूज करते हैं। लेट अस यूज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दिस इज थीटा। यू नो दैट tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x परपेंडिकुलर है और बेस 1 है। नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्टेन hypotenuse। We know that hypotenuse का square will be perpendicular का square plus base का square, that is x square plus 1. It means hypotenuse is coming out to be under root of x square plus 1. तो देखो ये हमने निकाल दी, under root of x square plus we have 1.
Now let us replace this tan inverse x by theta. इसी को थीटा लिया था. अब देखो y कितना आ गया. Let us see now. Now y is equal to sine of, right, cot inverse of cos theta. तो हमारे पास ये आ गया. अब आप इस ट्राइंगल से cos theta इजीली निकाल सकते हो. We know all the three sides of the triangle. So let us see what is cos theta. Cos is base upon hypotenuse. So that means it can be written as sine of cot inverse of cos theta is 1 upon under root of x square plus 1. Is it okay? तो under root of x square plus 1. अब देखो हमारे पास दो फंक्शंस रह गए. इनिशियली वी हैड 4, नाउ वी हैव जस्ट 2 फंक्शंस. अब अगला स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्व करो. जो ये वाला हमारा इनवर्स फंक्शन है इसको हम 5 पुट करते हैं. तो लेट अस अज्यूम cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टू बी इक्वल टू 5 बेटा. ऑलराइट, तो अगर हमने इसको 5 लिया है इसका मतलब cot 5 इज इक्वल टू, लुक हियर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. अगेन लेट्स यूज राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट्स सी हियर. cot होता है आपका tan का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस 1 है बेटा और परपेंडिकुलर है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हाइपोटेन्यूज. वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. कितना आ गया देखो, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2. तो हाइपोटेन्यूज आ गई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2. तो लेट मी राइट ओवर हेयर. तो ये हाइपोटेन्यूज आई है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2. अब देखो हम y लिखते हैं. ये वाला जो था हमारा cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, दिस वी हैव टेकन एज 5. तो y कितना हो गया, sin 5. तो लेट अस राइट नाउ, y हमें निकालना था. नाउ y इज इक्वल टू sin 5. इज इट ओके? तो लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है sin 5 और ये वाला एंगल 5 है. तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2. दैट गिव्स अस द वैल्यू. तो y की वैल्यू देखो बेटा आ गई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. सो यू कैन सी बेटा डी ऑप्शन में है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन है. इसमें भी देखो चेन ऑफ फंक्शंस है, दोनों तरफ है और यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में है और आपको x की वैल्यू निकालनी है. अब करने का जो मेथड है बेटा वो वही रहेगा. इसमें हम इसको थीटा अज्यूम कर लेंगे एंड दिस कैन बी अज्यूम्ड एज 5. वी विल सॉल्व बोथ साइड्स और दोनों साइड्स फिर x की टर्म्स में आ जाएंगी. आपके ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमूव हो जाएंगे. गिवन इक्वेशन को फिर हम सॉल्व कर लेंगे and we will find the value of x. all right, so let's start. पहले देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1. पहले इसी को देखो, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं. तो एज आई टोल्ड यू क्या करना है, जो अंदर वाला बेटा फंक्शन है ये वाला, इसको एज्यूम कर लो थीटा. तो लेट मी टेक cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 टू बी इक्वल टू थीटा. यहां से ऑब्जर्व करो cot थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, x प्लस 1. लेट्स यूज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ऑलराइट, लुक हियर. तो अगर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये एंगल है थीटा.
तो cot is again reciprocal of tan, base upon perpendicular, तो ये x plus 1 upon 1 है, तो base is x plus 1 and perpendicular is 1. Let us use Pythagoras theorem to obtain what? Hypotenuse. तो we have hypotenuse square as perpendicular square plus base square. तो hypotenuse का स्क्वायर हो गया 1 plus x plus 1 का स्क्वायर. तो hypotenuse is coming out to be under root of 1 plus into x plus 1 का स्क्वायर बेटा. This is the hypotenuse. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको. ये देखो, this is coming out to be under root of 1 plus x plus 1 का स्क्वायर. आप देखो लेफ्ट हैंड साइड थी क्या? लेफ्ट हैंड साइड वॉज साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ दिस, और ये जो है इसको हमने एज्यूम किया है थीटा. यही थीटा लिया था ना, तो एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग आउट टू बी साइन थीटा. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. Now let us calculate right hand side. फिर उनको इक्वेट करके we are going to find the value of x. Right side है cos of tan inverse x. So let us write now कि right hand side है cos of tan inverse x बेटा. Alright. अब फिर से देखो, composition of two functions है. अंदर वाला जो फंक्शन है tan inverse x, इसको हम assume कर लेते हैं मान लो phi. Let this be equal to phi. So that means we are getting from here कि tan phi will be equal to x. x का मतलब x upon 1. Again you know that we have to use right angle triangle. Suppose this is phi. Alright. Now tan is perpendicular upon base. So this is perpendicular, base is 1. Apply Pythagoras theorem. So hypotenuse square will be perpendicular square plus base square, that is equal to x square plus 1 का square is 1. Take square root, तो hypotenuse आ रही है under root of x square plus 1. तो यहाँ हम put करते हैं, देखो, तो this is under root of x square plus 1. Alright? एक सेकेंड, yes. ये आ गया देखो. अब हमें राइट साइड क्या है? इसको हमने एज्यूम किया था फाई, तो राइट साइड इज कॉस ऑफ फाई. तो लेट मी राइट ओवर हेयर, राइट साइड है कॉस ऑफ फाई. कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज राइट हैंड साइड. अब आप देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा. ऑलराइट, जस्ट लुक हियर. तो यू कैन सी नाउ बोथ ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, इसको कह देते हैं 1. Let us call this as 2. तो from 1 and 2 we get 1 upon under root of 1 plus x plus 1 का square is equal to 1 upon under root of x square plus 1. तो let us write now. We say from 1 and 2 we get, so from 1 and 2. Alright. Left side थी बेटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और राइट साइड ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x में विच विल बी डिवॉइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ऑलराइट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व टू फाइंड x. तो यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो लेट अस डू स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. Let's see what do we get. We will be getting x square plus 1 is equal to 1 plus x plus 1 का square. That means we have x square is equal to 1 cancel हो जाएगा, brackets open करो, it is x square plus 1 plus 2x. Alright. Now again you can see that x square will get cancelled. So we are getting 2x is equal to minus 1. That gives us the answer value of x to be minus half बेटा. Right. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? minus half. चेक करते हैं which option is correct. Now look here.
तो आप देखो यहाँ पे बेटा -½ इज ए ऑप्शन, राइट। तो इसका मतलब इसमें हमारी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन चेन ऑफ फंक्शंस था, मेथड वही है, अंदर वाले फंक्शन को थीटा या फाई लो, सिंप्लीफाई करो और निकाल लो। इसमें इक्वेशन थी तो दोनों को इक्वेट करके वैल्यू ऑफ x इज -½ ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। हमें चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स x। अगेन वी विल अप्लाई द सेम टेक्निक, लेट्स सी। इसको हम y मान लेते हैं, मान लो y है 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x। ऑलराइट, अब अंदर इनवर्स फंक्शन है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो लेट अस अज्यूम दिस टू बी इक्वल टू थीटा। तो लेट मी टेक साइन इनवर्स x टू बी इक्वल टू थीटा। अब देखो यहां से हमें क्या मिला, दैट मीन्स वी आर गेटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू x बेटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई x। अब देखो हमें निकालना क्या है, y कितना आ गया, लेट अस ऑब्जर्व, इट विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इज इट ओके, ये आ जाएगा, स्क्वायर है ना, तो ये थीटा था। अब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। सो लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी। सो वी हैव y इक्वल टू, दिस विल बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, and you know that cosecant square theta is reciprocal of sin square theta। तो बस इसमें तो हमें राइट ट्राइंगल यूज करके तीसरी साइड निकालनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली एक्सप्रेशन साइन थीटा की टर्म्स में आ गया। तो इफ साइन थीटा इज x, दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर that value of y is coming out to be 1 upon x square, and that is going to be the answer बेटा। Alright, तो आंसर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। यू कैन सी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज सी ऑप्शन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आज मैंने आपको इन वन ऑफ द क्वेश्चंस आई टोल्ड यू वी यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में, जैसे आपको tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, बिकॉज वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट शुड रिमाइंड यू ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने कहा था सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू ए tan थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो यही इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, हमें चाहिए, लेट अस डिनोटेड बाय y। सो वी नीड y टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय x। एक तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर सब्जेक्टिव होगा तो क्वेश्चन कैसे दिया होगा कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो या राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक इन, यू कैन सी दैट इन प्लेस ऑफ a वी हैव 1। तो सब्स्टिट्यूशन में बेटा a को 1 लेंगे, तो यहां पे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होगी लेट x बी इक्वल टू tan थीटा। ऑलराइट, बिकॉज यहां पे 1 है तो ये a की जगह कितना आएगा, 1। लेट्स अप्लाई, वी आर गेटिंग y टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो न्यूमरेटर में व्हाट वी आर गेटिंग, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, then we have minus 1 and divided by x कितना है, tan theta। Is it all right? So we can write it like this। अब देखो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेज यूज होंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम नोइंग प्रॉपर्टीज एंड इट्स डोमेन रेंज सारे इनवर्स फंक्शंस की, वी नीड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ऑल्सो। ऑलराइट, तो देखो यहां पे सबसे पहले तो आइडेंटिटी अप्लाई करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट secant square theta। That means we are getting y is equal to tan inverse of, look at the numerator, it is under root of secant square theta। ठीक है, हमने अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी। फिर है -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। टेक secant theta outside the square root,
So we have y equal to tan inverse of secant theta minus 1 divided by tan theta. Is it okay? अब पता है सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, अप्रोच क्या होती है. जैसे बाहर आपके पास tan इनवर्स है ना, तो ये एक्सप्रेशन जो अंदर है बेटा ये वाला, दिस शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan, सो दैट tan इनवर्स एंड tan आर कैंसल्ड. अब देखो tan की टर्म्स में लिखेंगे कैसे, उसके लिए हम इसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करते हैं. सो वी हैव y टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट. अब आप एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा विल गेट कैंसल्ड, दैट मीन्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा. अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट tan थीटा बाय 2. यही होता है ना, दिस इज द फॉर्मूला कि दिस इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2. तो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. वी आर गेटिंग y is tan inverse of tan theta by 2. Is it okay? Tan inverse or tan functions will get cancelled. We are getting y to be equal to theta by 2. अब आप ऑब्जर्व करो, लिखना तो इसको x की टर्म्स में है ना, क्योंकि थीटा तो देखो हमने खुद से अज्यूम किया था. लुक हियर, वी हैड अज्यूम्ड लेट x बी इक्वल टू tan थीटा, तो ये थीटा हमने खुद लिया था बेटा. सो अगर x की टर्म्स में आंसर देना है तो यहां से ऑब्जर्व करो, अगर हमने अज्यूम किया है x को tan थीटा बेटा, दिस इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. तो थीटा को लिख सकते हैं tan inverse of x. So let's apply this over here. That theta is tan inverse of x. अब देखो यहाँ पे we have y to be equal to theta by 2. That is एक तरह से 1 by 2 into theta. So tan theta x था, तो theta is tan inverse of x. तो y simplify होके आ गया बेटा 1 by 2 into tan inverse of x. So this will be the answer. Let's see which option is correct. 1 by 2 tan inverse of x. तो आप देख सकते हो 1 by 2 tan inverse x is B option. So in this particular question, correct option is B. देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको आगे डिफरेंशिएशन में भी आते हैं कि डिफरेंशिएट करो, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते चेन रूल से, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो अगर डिफरेंशिएट भी करना होगा तो आप इसको सिंप्लीफाई करके पहले ये वाली फॉर्म लेके आओगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे. Is it all right? Similarly, if you have to integrate also, तो उनमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखो कॉन्सेप्ट आता है. अगर आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं भी है इस पे, तो इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड सो ऑन. ऑल राइट, तो ध्यान से करना जरूरी होता है. कोई भी एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका मिस होता है तो इट अफेक्ट्स द अदर चैप्टर ऑल्सो. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. Now the question is again that you have to write this in the simplified form. All right. अब आप देखो बात हो रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की. निकालना क्या है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आई टोल्ड यू कि जब भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है, वी कैन टेक सब्सटीट्यूशन x टू बी इक्वल टू ए साइन थीटा, या ए कॉस थीटा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं. तो करते हैं स्टार्ट. तो लेट मी डिनोट दिस बाय y. y is tan inverse of x upon अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास ये है. लेट अस टेक दिस सब्स्टिट्यूशन. तो जहां भी x है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, a साइन थीटा से. तो वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, in the numerator also we replace x by a sin theta, और डिनोमिनेटर में भी, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. गॉट इट. नाउ इन द स्क्वायर रूट यू कैन सी ए स्क्वायर इज कॉमन, सो लेट अस टेक इट कॉमन. वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a sin theta
a को बेटा रूट के बाहर निकालो, हमारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. You know the identity, 1 minus sin square theta is cos square theta. तो y is equal to tan inverse of sin theta divided by under root of cos square theta. ये आ गया. cos square theta को बेटा रूट से बाहर निकालते हैं. So we are getting that y is equal to tan inverse of sin theta and this will be cos theta. Is it okay? ये हो जाएगा. You know that sin theta upon cos theta is tan theta. So y is equal to tan inverse of tan theta. Tan inverse और tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे. That means we are getting y to be equal to theta. अब देखो थीटा क्या था, हमने सब्स्टिट्यूशन क्या ली थी, let us recall. यहाँ पे देखो, we had taken substitution x to be equal to a sin theta. यही ली थी ना जो हमने पुट करी थी. अब आप नोटिस करो कि अगर आपने x को लिया है a sin थीटा, इट मीन्स x अपॉन a विल बी इक्वल टू साइन थीटा. तो यहां से देखो थीटा कितना आ गया, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस रिप्लेस थीटा बाय साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. तो थीटा को रिप्लेस करते हैं तो y थीटा ही था बेटा हमारा. तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. तो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन. गॉट इट? लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. साइन इनवर्स x अपॉन a हमारी आएगी करेक्ट ऑप्शन. आप देख सकते हो वो कौन सी ऑप्शन है, C. तो इस क्वेश्चन में बेटा 12th में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नथिंग बट C. इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे देखो मूव करते हैं. लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 13. तो ये देखो 13th क्वेश्चन में हमें चाहिए tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x. आप देखो इसमें x और पाई की टर्म्स में आंसर है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों रिमूव करने हैं. अब क्या अप्रोच लगाएंगे, अगर बाहर tan इनवर्स है बेटा तो अंदर वाला जो फंक्शन है दैट शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan. अब सिर्फ उसी को ले लेते हैं चाहे तो. पहले तो हम ये ले लेते हैं, हमें y चाहिए tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x. We have this. Because outside we have tan inverse, so function inside bracket should be written in terms of tan. Let's see how to do that. So I am taking only this part, cos x upon 1 plus sin x. Is it all right? अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, if you have 1 plus cos theta upon sin theta, ये फॉर्मूला होता है cot theta by 2 का, isn't it? 1 plus cos theta upon sin theta is cot theta by 2. तो यहाँ पे इसी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो इसका मतलब sin theta upon 1 plus cos theta, cot का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा, तो it can be written as tan theta by 2. अब देखो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में टर्म साइन में चाहिए और 1 के साथ वाली टर्म कॉस में, जबकि हमारे पास न्यूमरेटर वाली टर्म कॉस में है और 1 प्लस में जो टर्म है वो साइन में है. तो इंटरचेंज कैसे करेंगे, सिंपल है. cos x कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स. ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स. और 1 प्लस साइन एक्स है तो साइन x को लिख सकते हो इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस एक्स. अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया. इट इज ऑफ द फॉर्म साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज tan थीटा बाय 2. मीनिंग जो भी एंगल है बेटा सेम उसका हाफ लेना है. तो यहाँ पे वो एंगल पाई बाय 2 माइनस एक्स है. लेट मी टेक इट्स हाफ. सो दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ हाफ एंगल, that is pi by 4 minus x by 2. Is it okay? तो अब देखो y है tan inverse of this, तो y कितना आ गया. So this implies y will be equal to tan inverse of, तो अंदर वाला हमारा एक्सप्रेशन था
वो आ गया tan ऑफ पाई बाय 4 एंड माइनस x अपॉन 2 बेटा, ये आ गया. अब tan inverse and tan will get cancelled. That means we will have y to be equal to pi by 4 minus x by 2. Is it all right? तो ये आएगा. Let us check which option is correct. All right? तो pi by 4 minus x by 2 should be the correct answer. तो you can see pi by 4 minus x by 2 हमारी A option है. तो in this particular question, correct option is A बेटा. Is it okay? So this was question number 13. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at now 14th question. In this we have to calculate secant square tan inverse 2 plus cosecant square cot inverse 3. Let's see how to do it. So let us again denote it by y. It is secant square tan inverse of 2, all right, and plus we have cosecant square of cot inverse of 3. अब जैसे हम करते आए हैं बेटा आज लेक्चर में कि जैसे अंदर इन्वर्स है बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अंदर वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लो थीटा. सपोज इसको थीटा ले लो एंड लेट अस टेक दिस एज फाई. तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशंस ली हैं बेटा? tan इनवर्स 2 को हमने माना है थीटा एंड वी हैव अज्यूम्ड cot inverse of 3 as phi. What do we get from here? We are getting tan theta is 2 and we are getting value of cot phi is equal to 3. तो tan theta की वैल्यू हमें 2 मिल गई और cot phi की वैल्यू कितनी आई है? 3. Now let us see what is to be obtained. ये tan inverse 2 theta से रिप्लेस होगा cot inverse 3 phi से. So that means now y is equal to secant square theta plus we have cosecant square phi. Is it okay? अब आप नोटिस करो कि आपको राइट ट्रायंगल यूज करके secant phi निकालने की जरूरत नहीं है और cot phi से cosecant phi. क्यों? We can use trigonometric identities जिसमें हम लिख पाएंगे secant square theta को in terms of tan theta and cosecant theta को in terms of cot theta. So let's apply the identities. So we have y equal to, you know that secant square theta is 1 plus tan square theta, all right, and similarly cosecant square phi is 1 plus cot square phi. या क्या? अब यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्लेस करो tan square theta and cot square phi. tan theta 2 है, cot phi 3 है, तो that means we are getting y is 1 plus 2 का स्क्वायर plus 1 plus 3 का स्क्वायर. तो कर लो सॉल्व. 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 9 will be 15. That means value of y is coming out to be 15. Is it okay? तो no right triangle is required कि हम सोचें tan theta पता है तो secant निकालना है, because identity apply करके secant square theta can be written in terms of tan square theta and cosecant square phi can be written in terms of cot square phi, जिनकी values हमें already पता है. तो check करते हैं which option is correct. तो आंसर आ रहा है 15. As you can see बेटा, that is C option. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाएगी सी. इज इट ओके? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो इस लेक्चर में. लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. इसमें आपको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप नोटिस करो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी देख सकते हैं. तो पहले तो हम लिखते हैं हमें निकालना क्या है. We need y which is sine inverse of x into under root of 1 minus x minus root x under root of 1 minus x square. अब देखो कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चन देख के आपको प्रॉपर्टी स्ट्राइक करेगी कि हाँ ये जो लिखा हुआ है ये उस प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है. अगर आपको प्रॉपर्टी याद ही नहीं है बेटा, फिर आप ये क्वेश्चन में कैसे सोचोगे कि अगला स्टेप क्या होगा. ठीक है ना? अगला स्टेप सोचने के लिए हमें फॉर्मूलेज या प्रॉपर्टीज पता तो होने चाहिए. अब देखो इनसे रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, आप ऑब्जर्व करो.
we had this property that sine inverse of x minus sine inverse of y किसके इक्वल था? It was equal to sine inverse of x into under root of 1 minus y square, alright? तो under root of 1 minus y square and minus y into under root of 1 minus x square. This was the property. तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट विल लुक लाइक दिस वन. तो इसी फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं. अब ध्यान दो, y है साइन इनवर्स ऑफ x. जैसे यहाँ पे x था बेटा तो वो x ही है. फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आपको टर्म का स्क्वायर लेना है. अब अगर आपके पास x है बेटा तो ये किसका स्क्वायर है? रूट x का स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्म ये आनी चाहिए x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. फिर बीच में माइनस है, फिर y है रूट x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? तो अब आप अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को बेटा इक्वेट करते हो या कंपेयर करते हो, आप ऑब्जर्व करोगे x के बदले में तो x ही है. यू नोटिस ये वाली जो टर्म थी देखो x वो यही है. फिर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी सेम है. तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा ऑलरेडी सेम है. डिफरेंस किस में है? y वाले पार्ट में है. यहाँ पे देखो इन प्लेस ऑफ y वी हैव अंडर रूट ऑफ x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर में भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. इसका मतलब x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या है? रूट x. बस हमारा काम हो गया. तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल होता है, अप्लाई कर देते हैं. तो वी हैव साइन इनवर्स x माइनस वी हैव साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x. गॉट इट? सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y. तो चेक कर लो कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. ऑलराइट, तो लेंदी नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है. सिर्फ आपने ये वाली प्रॉपर्टी सोचनी है. तो आप देख सकते हो ऑप्शंस में. लेट मी शो यू द कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वी आर गेटिंग साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x. तो यू कैन सी दैट हियर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ऑल राइट? x की जगह x था, y की जगह रूट x था, तो इट वॉज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x विच इज बी ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में हमने कहा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा? बी ऑप्शन. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? All right. So in this particular lecture बेटा हमने किए कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि आपका क्लास 12th में है. तो अभी हमने बहुत ज़्यादा कोई लेंथी या टफ क्वेश्चंस नहीं किए हैं पहले लेक्चर में. ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में इन MCQs आ सकते हैं, तो पहले उन्हीं की प्रैक्टिस करनी चाहिए. We'll go step by step and meanwhile you have to revise the properties and domain range of inverse trigonometric functions और उनके ग्राफ्स भी. राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के बेटा MCQs कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, तो उसमें हम अलग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. We'll keep on increasing the level, okay, lecture by lecture. ऑलराइट, ताकि आपको समझ में आता रहे. तो अगर नहीं समझ में कभी आता है बेटा, you can go through the video again and see the solution. all right, and keep practicing. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेटा देखने से बात नहीं बनती है. maths is all about doing it on your own. all right, so keep doing the questions on your own. तो as I said, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. इस लेक्चर में इतना ही. I hope you are enjoying the benefit of our courses and please don't forget to subscribe to the channel. all right, thank you beta and bye bye.